hello and welcome to Sai Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ପୂର୍ବଭଳି ଆମେ କ'ଣ ନା ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିକେର ଯେଉଁ ଆମର 500ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା କିଛି ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ 9 ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ଡେଡିକେସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ହିଁ ଏଇଠି ଦରକାର। ବିକଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସେଇପାଇଁ ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ହେଉଛି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଆମର ସେଗମେଣ୍ଟ ସରିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ମୁଁ ଯେମାନେ ବି ଅଧିକତମ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ନମିନେଟ୍ କରିବୁ ବା ଡୋନେଟ୍ କରିବୁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି, କିଛି ଉଣା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ କିଛି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଦେବ। ଓକେ, ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗେପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ସେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ମାନେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗେପ୍ କେତେ, ମାନେ ଦୁଇଟା ସେସନ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗେପ୍ କେତେ। 4 months, 8 months, 3 months, 6 months। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା 6 month। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା 6 month। ଓକେ, 6 month ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, when was the France first written constitution adopt। तो এটা গলা কোন ফার্স্ট রিটেন কনস্টিट्यूशन एडॉप्ट केबे हेतला फ्रांस द्वारा। ओके, तो 1791 रे फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कोन एडॉप्ट हेतला। फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हेतला केबे ना 1791। ओके, भल से मन रखिए। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following social evils was strongly opposed by राजा राममोहन रॉय। ओके, राजा राममोहन रॉय द्वारा माने ताकर सोशल इविल वाज स्ट्रांगली अपोज्ड, माने कहा गोष्ठी स्ट्रांगली अपोज करथिले। सतीदाह प्रथा, सती प्रथा, सतीदाह प्रथा। तो आंसर एठी कोन ना सती। ओके, एटा नुह कोटा भी नुह, आंसर हला कोन ना सती। ओके, सती भल से मन रखिए। तो ये कौन है फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन केटा ना केबे एडॉप्ट कला फ्रांस ना 1791। ओके, 1791 रे। तो देखो, तो आपण ये गोटे क्वेश्चन, फर्स्टली कौन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करथिला। फर्स्टली कौन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करथिला आपण मानका पे प्रथम क्वेश्चन। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following supported the theory of safety valve assigned the Indian National Congress। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा ये जो थ्योरीटा एटा के असाइन करथिले, महात्मा गांधी, जो माने महात्मा गांधी एंड कौन कही ना एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड दादा भाई नारोजी। तो आंसर है कौन ना एलन एटोबियम ह्यूम। ओके, ये करथिले। तो मु सेफ्टी फॉल थ्योरी कौन जानते, सेफ्टी फॉल थ्योरी जे आस्तिला माने कौन ना जो 1857 जो सिपाही विरुद्ध विद्रोह सरला से कौन कले ना किसी बाबाजी भाया लोक मानू बाबाजी भाई पठेले कौन ना तुम जाओ भारत भ्रमण कर, भारत में आउटी कौ प्रकार माने विद्रोह उत्पन्न होची ताकू देख। तो आलन एटोबियम से एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो किसी लोक मैंने जो भारत सारा बोली आइले तापर जाके कहले हाँ आज्ञा एबे भारत में 1857 विद्रोह ठारू आहरी गोटे बड़ विद्रोहर रूप नवाक जाऊँगी, आपण यार किसी समाधान करूँ। से कौन ना यार समाधान पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट करते। यहाँ हूँ ये। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following applicable regarded the second phase of Brahma Samaj that started after Devendra Nath Tagore recognized it। Okay, तो आंसर कौन ना इट सपोर्टेड द मूवमेंट ऑफ विडो रिमैरेज, इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ओनली प्राइमरी एजुकेशन ऑफ वुमेन, इट डिमांडेड लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स ए मैन कैन हैव, इट डिमांडेड लैंड रेवेन्यू टू बी डिडक्टेड टू हाफ।
से कौन कहला इट सपोर्टेड टू मूवमेंट फॉर विडो रिमेरेज माने से कौन से विडो रिमेरेज को सपोर्ट करथिले कि एटा देवेंद्रनाथ टैगोर को सेकंड फेज ब्रह्म समाज रो सेकंड फेज ब्रह्म समाज रो फर्स्ट पेज हला क्या कि ना राजा राममोहन राय सेकंड फेज कथा कहिछि द सपोर्टेड टू आइडियल ऑफ ओनली प्राइमरी एजुकेशन ऑफ वुमेन ओके देन देखो ना द डिमांड लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स a man can have it demand if it demanded the land revenue to be deducted to half तो आंसर कौन होबो यार एक्चुअली आंसर कौन ना सी जहाँ करथिले ये भी ताको अनुकरण करिए इट सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर विडो रिमेरेज ओके आंसर हला ए इट सपोर्टेड द मूवमेंट ऑफ विडो रिमेरेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो the question has two statement of some conclusion choose the conclusion that logically follow East India Company okay East India Company bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over the three villages okay in 1696 East India Company began to build a fort around the settlement of हुगली एटा पूरा राइट कथा कहिछि देखो आंसर एटा कोन होबो पूरा इजी जानि परियो गेस करि परियो आराम से तो देखो कंक्लूजन रे कोन कहला एटा तो तार ये कहि दिला मन मोटोटा कहि दिला जे भाई जमींदारी प्रथा रे तीनटा विलेज को से माने शासन करि परिबे एंड 1646 मसिया प्रथम करी हुगली रे कोन हला ना फोर्ट तयारी हला फर्स्ट सेटलमेंट द्वारा तो ये देखो कंक्लूजन कौन कही 2020 रो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन आसला तो आपण माने टिके क्वेश्चन को लॉजिकली विथ कॉन्सेप्चुअली बुझिया पे पड़िबो ओके तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर वेयर करप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर वेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर लाइक्ड ब्रेकिंग रूल्स ओके आंसर कौन ना ओनली 1 and 2 फॉलो ओके ओनली 1 and 2 फॉलो करियो देखो से कोन कहला ना ईस्ट इंडिया ऑनलाइन कंपनी आम ठार कोन जाउतला पैसा जाउतला करप्शन जाउतला से करप्शन करतला हमहु करप्ट करतला ओके तो एटा ठीक अछि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ से माने निजो को प्रोटेक्ट करिया पय चाहुतले सेही पय से माने एसु करूतले किंतु एटा नहे ऑन एम्पायर से केवल निज पैसा इनकम आसते ओके आ कि भी नुह केवल आम देश को जिते से आसी आम देश जीडीपी के किए कहीपर कि आम देश जीडीपी 29 to 30% एबव था एवं ये 6 to 7% जीडीपी अच्छी से 30% पाखापाखि जीडीपी थी जिते से आम भारत को लुंठन करगले से आम भारत जीडीपी है 9% आम भारत से जीडीपी है 1947 टाइम 9% ओके 9% ओके देखो तो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरची आफ्टर 1793 आंसर कौन ना इंडियन वे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस से कौन कला निजर मोनोपोली एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्ट 1977 जिते कौन आसला जिते आमर परमानेंट सेटलमेंट आसला जमींदारी सिस्टम आसला राउरकेला एक्ट पोरर कथा माने 1773 राउरकेला एक्ट पोरर कथा ए सब then Indian could hold position only after converting the Christianity post with more than salary of 500 a year were received for Englishmen entrance tests were made difficult for Indian and easy for British तो यार आंसर कौन हो post with more than salary of 500 a year were reserved for Englishmen एटा होगा आंसर सॉरी कौन बोला ना एटा होगा आंसर 62 रो एटा आंसर कौन कहला ना से माने कहले 1773 वारेन हस्टिंग माने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट कले माने एटा मु आपन को हिस्ट्रीटा कहि दउची जते इन 1773 वारेन हस्टिंग करो आसला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले से कहले अबे हमर भारत से तो 1607 रा 9 रे आसिले से माने नाही 1757 पलासी युद्ध पर से माने ऑलरेडी पाखापाखि 150 रु अधिक वर्ष हम भारत रे रही गलेनी हम भारत को शासन करिवार क्षमता तांको हाथ को चली आसलेनी तो से माने कहले आमे सब जोटी जो ऑफिस खोल देछि ताको तो संभालिया पई के लोक दरकार देन से माने कोन कले ना
गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम स्टार्ट कले। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम रे ओनली इंग्लिश लोक मैंने नहीं पारे से $500 बोधे $500 पर ए ईयर वार रिजर्व फॉर इंग्लिश मैन सैलरी रोला। ओके तो से कौन ना कॉर्नवालिस इज आवर द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। सी कौन ना सी कहले ना सी कहले कौन ना एथर इंडियन माने एग्जाम रे बसी पारे। आमर प्रथम आईएएस की सुरेंद्रनाथ बोस। ओके सुरेंद्रनाथ बोस इज आवर फर्स्ट आईएएस। तो हाँ तो से कौन कहले ना भाई एडमिनिस्ट्रेटिव दरकार तो एडमिनिस्ट्रेशन आम भारत को सॉरी भारत पाई आपण माने पठांतु से ब्रिटिश मान से माने अनुरोध कले आपण माने एडमिनिस्ट्रेटर हम भारत पे पठांतु नले आमे एठी एग्जाम करियो ब्रिटिशर्स मान को एठी एग्जाम दवा पई करियो। ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन which article deals with the constitution of the parliament of India। से parliament of the Indian constitution ପାଇଁ की deal करछि ना article 78 72 79 73 आंसर हैला 79 हैला यार आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो why in India the power of judicial review is restricted। why in India the power of judicial review ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ restriction କାହିଁ ଆଣୁଛେ ବା restricted କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ନା the legislature is supreme, judge is transferable, the execute in supreme and the constitution of supreme। ଏटा ଆମେ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ तो the constitution is supreme। से माने कौन कहूँ ना आमर संविधान हूँ बड़ आम संविधान आम बड़ आम संविधान आमको कौन जुडिशियल सिस्टम शिखा आम संविधान आमको सबकि आमर जो नियमावली जहाँ रही है आम संविधान आमको कहूँ। तो से कहूँ व्हाई द इन इंडिया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके से एटा कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज सुप्रीम इज आवर द सुप्रीमो जमती आम कहे आमर तीन ईयर के मुख्य सचिव किए ना प्रेसिडेंट तीन आर्मी बा आर्मी हो नेवी हो एयरफोर्स हो सेमतिया जे जुडिशियल रिव्यू आम जो जुडिशियल रिव्यू तुम्हें नहीं पार आम जो गोटे केस समाधान हो तापर भी लोक मैंने जुडिशियल रिव्यू नौ तथापि कौन ना यह तार प्रोस्पेक्शन रोचे तो किछिटा प्रोस्पेक्शन रोचे। ओके तो देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सिंगल सिटीजनशिप कोठी निया है यूएसए कनाडा फ्रांस यूके। तो एटा हला प्रथम करी ब्रिटेन रु निया है ब्रिटेन मींस यूके रु निया है यूके यार आंसर यूके रु आहुरी कौन कौन निया है मैं आपन कहि दीजी आपन माने मते कमेंट रे जणांतु। ओके किंग लुइस एक्स वी आई बस किंग लुइस 16 वाज condemned to death on January 21 1793। what were the charges against him? exploitation of the third estate, authoritarian rule and doctorial regime, तो misgovernance and corruption, high treason and crime against the state। तो आंसर एटा कौन हम ना हाई ट्रांसलेशन एंड क्राइम एग्निस्ट द स्टेट यार आंसर एटा तांकर जो हाई ट्रांसलेशन एंड क्राइम एग्निस्ट द स्टेट प्रति जो सब अत्याचार थिला ता पई तांको चार्जेस बा तांको पई तांको कोन माने भोग करिया को पड़थिला बा चार्जेस देवा को पड़थिला। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the question has two statements and some conclusion। they are the National Assembly of France conclusion that logically follow। से कौन कहला statement National Assembly adopted the Declaration of the Right of Man and of the Citizen। Declaration was grounded in the philosophical and the political idea of enlightenment thinker। okay तो आंसर कौन माने conclusion कौन ना it supported डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इट सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आगे फर्स्ट आउथर स्टेटमेंट पढ़ु देखो नेशनल असेंबली फ्रांस कथा चलती नेशनल असेंबली एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजनशिप। एडॉप्ट करछि डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजनशिप। डिक्लेरेशन वाज ग्राउंडेड इन द फिलोसॉफिकल एंड द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर। ओके कंक्लूजन एटा कहला इट सपोर्टेड माने कौन कहला ना
democratic ideas of equality. It supported the freedom of speech. None of them follow, only one follow, only two follow, only one follow, only two follow, and both one and two follow. तो आंसर कौन ना बोथ वन एंड टू फॉलो, बोथ वन एंड टू एटा को फॉलो करछि ना. इट सपोर्टेड डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इट सपोर्टेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच. The English East India Company got Diwani rights in Bengal after 1772. How did it benefit the East India Company? Okay, how it benefit the East India Company? से कौन कहला East India Company को एटा केमितिया बेनिफिट होतला. They did not have to pay any tax in India. Okay, they could buy Indian goods without paying anything. They could use the vast revenue resource of Bengal. They could collect tax even from the Nawab. এটা তো ডাইরেক্ট आंसर কই দিয়েছি কোন না. they could use the vast revenue resource of Bengal. दिवानी राइट्स किड लाइतला बेंगल बिहार ओडिशा देन से माने हाईएस्ट रेवेन्यू किड नोथले ना बेंगल रो नोथले. The question has statement regarding doctrine of lapse, choosing the conclusion that logically follow. If an Indian ruler died without a male heir, माने पुत्र, his territory will become part of English Empire. The answer कौन ना. First, the Indian ruler could adopt without letting it know to the British. Indian rulers were not allowed to marry more than once. Indian ruler had to get the birth of their heir restricted with the British. Female were not considered heir to the throne. এটা তো third and fourth টা হবো লাগুଛି. तो देखा जाओ only third and fourth follow, only fourth follow, only one and second follow, only second and third follow. तो आंसर ହେଲା कोन ना only third and fourth follow. only third and fourth. ओके, तो पूर्व गुड़ार बोधे आंसर कोई नहीं आपन टिक कर दोजे. एटा हबो दीवानी एटा राइट्स एटा हबो. एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हबो डी बोथ वन एंड टू फॉलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोई दिछि बोधे एटा थर्ड टा हबो हाई ट्रांजिशन एग्नेस्ट क्राइम. ओके, आ तो सब जानछन्ती. देखो एटा भी कौन है ना ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो. एटा फर्स्ट आंसर है ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो. ता एटा इंडियन रूलर कुड अडॉप्ट सॉरी हमर इंडियन रूलर हैड टू गेट द बर्थ ऑफ देयर हेयर रजिस्टर्ड विद द ब्रिटिश. फीमेल वे आर नॉट कंसीडर्ड एट द थ्रोन. ओके, फीमेल माने थ्रोन को नहीं परिवेनी. एमानकर जदी पुत्र नथिया एमाने ब्रिटिश को निज टेरिटरी दे देबे. एटा थिला कोन ना तांकर सिस्टम. How did Vidyasagar's attempt to allow non-Brahmin students in the Sanskrit college impact society? Brahmin student openly accepted the non-Brahmin student. Sanskrit college was boycotted by the Brahmin student. Non-Brahmin student could not study Sanskrit scripture. Non-Brahmin student became revolutionary after the studying there. एटार आंसर कौन से कहला ना विद्यासागर को अटेम्प्ट कौन थिला नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट को संस्कृत आविर्भाव. जमान धर जो ब्राह्मण प्रजाति जाति रे नहते से को संस्कृत आम केमितिया पढ़ू. तो ठीक अच्छे, तो यार आंसर है कौन ना नॉन ब्राह्मण. एटा आगे लिखी दवा टिके बहुत यार देखो एटा कौन कहला ना एटार आंसर है कौन ना नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स कुड स्टडी संस्कृत स्क्रिप्चर. से पाई से संस्कृत कॉलेज व संस्कृत कॉलेज इंपैक्ट सोसाइटी से क्रिएट करथिले नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट को पाई. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1939? Congress did not support his revolutionary idea. Gandhi and his supporters opposed him. He wanted to give a military touch to the national movement. He wanted to be a free to from Indian National Army.
तो यहाँ कौन ना गांधी एंड हिज सपोर्टर गांधीजी और सुभाष चंद्र बोस गोटे माने ये जदि सी कहते आमको गोटे गाल मार तो आम आ गोटे गाल देखा गांधीजी कहते बट सी कहले से सुभाष चंद्र बोस कहले आमको जी जड़े मार आम गोटे पहाड़ मार आम दी पहाड़ मार तो ये माने कौन कॉन्सेप्ट थिला तो से गांधीजी एवं हिज सपोर्टर्स वेयर अपोज हिम तो से सी रिजाइन देते तो ठीक अच्छे आपण मान क्वेश्चन गांधीजी सॉरी सुभाष चंद्र बोस ताले 1939 रे कोठारे से प्रेसिडेंट होता ओके एटा आपण मान जणेबे तो आंसर कोन एटी मार दोची आपण को ना एटा सेकंड बी गांधीजी एंड हिज माने सपोर्टर वेयर opposed him okay next question which of the following was not contribute of ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कोटा कंट्रीब्यूट नुहे modern prose style of in Bengali wrote in Bengali primer inspired the student to think rationally involve a new technique to the teaching Sanskrit तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कोनटा कंट्रीब्यूट करने थे देखो एटा आंसर कौन हम ना मॉडर्न प्रोज स्टाइल इन बेंगली एटा से कंट्रीब्यूट करने ना आउ सबरे तांकर माने हाथ थिला बा आउ सबरे से सहयोग करथिले ओके एटा भलो से मन रखिबे ताले आपन को एटी गोटे क्वेश्चन भी पचार दे पले ए तीनटा रु जे कोनटा ताको सहयोग करथिले ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन who appoint the chairman of the public account committee who appoint the chairman of the public account committee president deputy speaker of lok sabha leader of the opposition party तो it समझते भावते president but it is not the answer of president it is the answer is speaker of lok sabha ही कौन करती ना chairman आसंती public account committee chairman की speaker of lok sabha okay read the statement about the Rowlatt Act of 1919 and select the more logical conclusion that follow. Government could imprison and person without trial and conviction in a court of law. Government has suspended in the right of habeas corpus एटा होची हमर जो सुप्रीम कोर्ट रो बा हाई कोर्ट रो जे कोनसी कोर्ट रो पांचटा रिट सुप्रीम कोर्ट रो तो ताकू माने एठी कहिछि कोन ना देखो राउलेट एक्ट 1919 बेले ही सिलेक्टेड द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम फॉलो गवर्नमेंट कुड इम्प्रिजन any person without trial any conviction in a court of law okay गवर्नमेंट कुड सस्पेंडेड द राइट ऑफ हेबियस कर्पस जो आमर पांचटा जो राइट्स अच्छी ता मध्यरु फर्स्ट राइट्स है हेबियस कर्पस ताको सस्पेंडेड करिया कथा कहूची एवं एटी कन्विक्शन टू लॉ माने लॉ प्रति जो कन्विक्शंस अच्छी आमर जो रूल्स अच्छी ताको से कोन ना ट्रायल बा इम्प्रिजन करिया को कहूची ओके तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट ओनली सेकंड इज करेक्ट ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है कौन ना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन ना गवर्नमेंट जो राउलेट एक्ट 1919 टाइम गवर्नमेंट कौन कहला ना भाई आमे कौन ना कन्विक्शन ऑफ लॉ को आमे ट्रायल करबा आमे नबा ताकू कौन माने हमर जतकी सब एक्ट हे जे हमर जतले 1947 रे आमे जतले संविधान करलु ई सब एक्ट को किछि 19 से तो मेन पुरोधा रहि चंती के मेन एक्ट हैला जो भारत शासन आईन 1935 इंडिया रूल एक्ट जेडो 1935 टा कौन ना मेन तार इवेंट रही मेन भाग रही से भाया किंतु राउलेट एक्ट भी सब एक्ट रु किसी नहीं से राउलेट एक्ट कौन कहला ना गवर्नमेंट कुड इम्प्रिजन माने से कौन दाखिल करि परिबो एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ से किछि करियो दर नै माने देई परिबो हला कौन ना कोर्ट ऑफ लॉ रे से निज मतामत देई परिबो बा सेठी से निज ट्रायल देई परिबो गवर्नमेंट कुड सस्पेंडेड द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस एटा बस मन रे एटा आंसर हैला कौन ना बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट पॉसिबल मन रखंतु which amendment act lowered the voting of 21 to 18 भाई 21 वर्ष थिला ताको 18 वर्ष कर दिया हैला को अमेंडमेंट एक्ट 65 61 60 64 तो आंसर हैला कौन 61 एटा 61 हैला आंसर ओके तो आपण मान पई सेतले को फर्स्ट क्वेश्चन पचारि देथिली जो हमर थिला कोन ना फर्स्ट आपन देखि देबे तो एबेकार गोटे क्वेश्चन पचारछि
आम भारत में प्रथम सेंसस बा जनगणना केबे होता एवं क्यों भाइसराय बा क्यों गवर्नर जनरल बा क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ये सब मध्य किए थे से ओके। तो आज के एतिकी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। जी क्वेश्चन पचार तार आंसर दिंतु ताको आमे नोट करूँ आम जे भी आम अधिक आंसर देथियो आम सेगमेंट आम प्राइज डोनेट करूँ। देन आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ बिकज आपण लाइक एंड शेयर आमको मोटिवेशन आनीदेव आम आहरी नुआ नुआ कंटेंट आनीपर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बा टॉपिक वाइज जो थ्योरिकली कॉन्सेप्चुअली जहाँ भी आम देखुचे जो क्वेश्चन पढ़ुचे ताको आम भलसे आलोचना करें। ठीक अच्छे। आज के जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।